Good morning, students. Today I am going to continue your chapter, My Childhood, page-wise explanation of the chapter. This is my second video. First video was the just introduction, the summary of a brief summary of the chapter. Now the page-wise, stanza-wise explanation of the chapter, My Child. Page number 68, first stanza. I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jalaluddin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed a great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiyamma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. अब यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जो हैं अपने फैमिली के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं. वो बता रहे हैं कि वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली से बिलोंग करते हैं. रामेश्वरम मद्रास का स्टेट है, वहाँ से वो हैं. और उनके फादर का नाम जलालुद्दीन है और उनके फादर ने कुछ ज़्यादा एजुकेशन नहीं प्राप्त की, ना ही उनके पास इतनी संपत्ति थी. उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छे इंसान थे. उनको हेल्प हमेशा उनकी मदर करती थी. उनका नाम आसी अम्मा था और उन्हें पता नहीं कि उनकी मदर कितनों के लिए खाना बनाती थी. अनकाउंटेड आउटसाइडर्स उनके घर पे रोज़ खाना खाते थे. इतने वो जनरस थे, इतने वो काइंड थे उनके पेरेंट्स. यहाँ पे वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं. Second stanza. I was one of many children, a short boy with a rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestors' house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid inessential comforts and luxuries. However, all the necessities were provided for in terms of food, medicine and clothes. In fact, I would say mine was very secure childhood, both materially and emotionally. अब यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उनका अपीयरेंस, वो कैसे दिखते थे. वो छोटे बच्चे थे, रैदर लुक्स थे उनके. वो बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. वो छोटे थे मगर उनके पेरेंट्स बहुत सुंदर और टॉल थे. और वो अपने पूर्वज के मकान, मतलब एंसेस्टर्स के मकान में, यानी पूर्वज के मकान में वो रहते थे. और मॉस्को स्ट्रीट में उनका मकान था रामेश्वरम में. और उनके फादर जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और फालतू खर्चों पे वो बिलीव नहीं करते थे. वो जो कंफर्ट और लग्जरियस चीज़ों के लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, मगर उनकी सारी ज़रूरतों की चीज़ें उन्हें ज़रूर पूरी हो जाती थी. उनको खाना पीना, कपड़ा, दवाइयाँ, ये सब उन्हें बहुत इजीली मिल जाती. वो अपने आप को मानते हैं कि बहुत लकी थे, वो सिक्योर था उनका चाइल्डहुड, बहुत ही सुरक्षित थे. वो उनके सारी ज़रूरतें पूरी होती थी, इमोशनली भी और मटेरियली भी. यानी सारी जो चीज़ें थी, जो ज़रूरतों की चीज़ें, वो सारी हमेशा उन्हें मिला करती थी. Third stanza. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for termite seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to the provisional store shop of Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspensions of the train halt at Rameshwaram station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slots. Samsuddin, and as if naturally I filled the slot. Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. अब इस स्टैंजा में वो बता रहे हैं अब्दुल कलाम जी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ब्रोक आउट हुआ 1939 में, तब
8 इयर्स के थे, वो सिर्फ 8 वर्ष के बच्चे थे। एंड वो समझ नहीं पाए कि एकदम से वहाँ मार्केट में टर्मरिन सीड्स की इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई, इमली के बीजों की इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई मार्केट्स में। और वो उसे कलेक्ट करते थे और दुकानों पे जाके बेच देते थे और उन्हें 1 आना का आमदनी उन्हें होती थी। और उनके जो ब्रदर हैं जलालुद्दीन, कज़न ब्रदर इन लॉ, जो वो उन्हें बताते थे सारी इंसिडेंट्स के बारे में, वॉर के। वो अगले दिन वो हेडलाइंस में, दिनमणि में पढ़ा करते थे। और कुछ समय बाद वहाँ पर ऐसा हुआ वॉर के कारण कि जो ट्रेन थी जो रामेश्वरम स्टेशन पर रुकती थी, मगर अब वो जो है वहाँ पर हॉल्ट नहीं था, सिर्फ न्यूज़पेपर्स के बंडल धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में फेंकते थे और वहाँ पे उन्हें पकड़ना पड़ता था। तो उनका जो ब्रदर थे शमसुद्दीन, कज़न ब्रदर, वो न्यूज़पेपर वहाँ से कलेक्ट करते थे। मगर उनको इस समय जब वो बंडल, वहाँ स्टॉपेज नहीं था, सिर्फ वहाँ पर पेपर्स को थ्रो आउट किया जाता था, उसे कलेक्ट करने के लिए उन्हें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था। तो वो अपने कज़न ब्रदर शमसुद्दीन के साथ उन्होंने मिलकर ये काम, उन्होंने उनकी हेल्प की और ये उनकी फ़र्स्ट अर्निंग थी, जो फर्स्ट टाइम उन्हें पैसे कमाने का मौका मिला। Every child is born with some inherited characteristics into a specific social, economic and emotional environment and trained in center ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father, from my mother. I inherited faith in goodness and deep kindness and so did my 3 brothers and sisters. अब यहाँ पे अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि सब बच्चे जो हैं अपने जेनेटिकली कुछ ना कुछ इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, फोर फादर्स से। तो उन्होंने भी ये इनहेरिटेंस का कारण क्या होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है, इमोशनल एनवायरनमेंट होता है और अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं। और ये इन्होंने जो इनहेरिट किया अपने अंदर, जो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी ऑनेस्टी की, वो उन्होंने अपने ऑनेस्टी और डिसिप्लिन की, वो उन्होंने अपने फादर और मदर से इनहेरिट की हैं, वो यहाँ बता रहे हैं। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये सब चीज़ें, गुडनेस, काइंडनेस, इन्होंने भी और उनके ब्रदर और सिस्टर्स ने भी अपने फादर से, पेरेंट्स से इनहेरिट की थी। आई हैड 3 close friends in my childhood, Ramanath Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan. All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. अब अब्दुल कलाम के 3 फ्रेंड्स थे, 3 मित्र थे, 3 फ्रेंड्स थे, वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, बिल्कुल रूढ़िवादी थे वो, ब्राह्मण परिवार से, कट्टर धर्म को मानने वाले वो फैमिली से बिलोंग करते थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious discrimination and upbringing. मगर हम तीनों दोस्तों में कभी कुछ भेदभाव नहीं हुआ कि हम रिलीजियसली, हमने तीनों ने कोई डिस्क्रिमिनेशन किया हो या डिफरेंस पाया हो, या बड़े होने में कुछ, तो अपब्रिंगिंग में कुछ हमने अपने अंदर कोई चेंजेस पाए, ऐसा कुछ भी नहीं देखा उन तीनों ने। इनफैक्ट रामनाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणन शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। उनके जो एक फ्रेंड थे रामानाथ शास्त्री, वो एक बहुत बड़े पुजारी के बेटे थे, जो रामेश्वरम टेम्पल के बहुत बड़े पुजारी थे, उनके बेटे थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज, अब बाद में उन्होंने जो है अपने पापा का जो था पुजारी का जो पद था वो उन्होंने ले लिया था, उनके फ्रेंड ने, फादर ने, उनके फादर से। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिमेज, और उनके दूसरे जो फ्रेंड थे अरविंदन, उन्होंने ट्रांसपोर्ट यानी यातायात में यात्रियों को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम शुरू किया। और शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज, और शिव प्रकाशन, उनका जो एक और मित्र था, वो ट्रेन्स में कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लिया करते थे सदर्न रेलवेज में। 5th point, during the annual Sri Sitaraman Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. अब ये अब्दुल कलाम जो थे मुस्लिम रिलीजियस से बिलोंग करते थे, फिर भी इनकी जो फैमिली थी, उनके जो परिवार था, वो क्या करते थे, एनुअल वार्षिक जो उत्सव होता था मंदिरों में, राम कल्याणम सेरेमनी, उनमें उनके परिवार जो है बोट्स अरेंज करते थे। उस बोट्स में भगवानों की मूर्तियाँ, टेम्पल्स से मैरिज जहाँ होता, जहाँ शादियाँ होती थी, वहाँ पर ले जाकर वो लोग वहाँ उसे ड्रॉप करते थे। वो बिल्कुल बीचों बीच वो जगह थी रामतीर्थ, और वो उनके घर के बिल्कुल पास थे। और इनकी मदर और ग्रैंड मदर इनको भगवान की रामायण में से और बहुत अच्छे अच्छे कहानियाँ उनको हमेशा रात को सोते समय इन्हें सुनाया करते थे। ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी इनके घरों में हिंदू रिलीजियस स्टोरीज और हिंदू एनवायरनमेंट टोटली उनके घर में हमेशा रहता था। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram
Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I also sat in the front row next to Ramanathan Sastri, who wore the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking as a new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanatha Sastri. He looked utterly downcast as I shifted to my new seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row felt a lasting impression ऑन मी. अब क्या हुआ, एक दिन इनके साथ ऐसा एक घटना घटी कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे एलिमेंट्री स्कूल में रामेश्वरम में, तब एक नए टीचर इनके स्कूल में आए थे और ये हमेशा एक कैप पहनते थे जो दर्शा दिया करते थे कि ये मुस्लिम है. और उनके साथ उनका एक फ्रेंड बैठता था रामानंद शास्त्री, जो हिंदू था, ब्राह्मण था, वो जनेऊ धारण करके रखता था. तो ये दोनों डिस्क्रिमिनेट हो जाते थे कि ये ब्राह्मण बच्चा है और ये मुस्लिम बच्चे हैं. और न्यू टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने देखा कि एक मुस्लिम ब्राह्मण के पास बैठे हैं, तो उन्होंने अब्दुल कलाम को उठाकर लास्ट बेंच में भेज दिया. और रामनाथ शास्त्री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो बहुत दुखी हुआ, उसके चेहरे पे वो दुख उदासता दिखी, वो डिप्रेस हो गया ऐसे हरकत से जो उस टीचर ने उस दिन की थी इन लोगों के साथ. After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmanan Sastri summoned the teacher in our presence, told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of the innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Sastri conveyed ultimately performed this young teacher. अब ये स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ था वो इन दोनों बच्चों ने जाकर अपने घर पे कहा, तो उनके पेरेंट्स इस इंसिडेंट को बहुत सीरियसली लिया. तो इसमें रामानंद शास्त्री के फादर लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने उस टीचर को अपने घर बुलाया और उन बच्चों के प्रेजेंस में उन्होंने कहा कि आपको ऐसी मतलब ऐसी जो जाति भेदभाव मतभेद वाली बातें इन छोटे से मासूम बच्चों के मन में नहीं भरनी चाहिए, ऐसा जहर उनके मन में नहीं घुलना चाहिए आपको. और आपको इन बच्चों के सामने आपको आपकी गलती माननी पड़ेगी. अगर नहीं मानते हो, आप सॉरी नहीं बोलते हो, तो आप ये स्कूल छोड़ के, ये जगह छोड़ के आपको जाना पड़ेगा. और ये टीचर, नाउ ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर. अब इसी हरकत के कारण जो अब्दुल कलाम में जो पूरा चेंज आया, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ आया उनके मन में, और एक नए शिक्षक का निर्माण इसी इंसिडेंट से हुआ. यहाँ पर अब्दुल कलाम ये हमें बताना चाहते हैं, उनके मन में एक रिफॉर्म इस इंसिडेंट से आया और उनके अंदर ये इम्प्रेशन आया कि एक टीचर जो है देश का निर्माता है, उसे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कैसे वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसे प्रीचिंग्स देनी चाहिए. और कैसे उन लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन कन्वे किया. उस टीचर को जब बुलाया, उन्होंने सम्मान किया और कहा कि आपको ऐसी पॉइजनस बातें इन इनोसेंट बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए. अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम पॉइंट 8. थैंक यू.